Hello everyone, today we are going to start a new chapter, chapter number 10, Dividend and Interest. In this chapter, we will learn the dividend, features of dividend, legal provisions of dividend, unpaid and unclaimed dividend, modes of payment of dividend, and interim dividend. Thereafter, we will also learn the meaning of interest and the features of interest. Now, before starting our chapter, we need first to understand what is the dividend and what is the interest. So, students, first we need to understand what is the dividend. When company need to earn finance from the public, so in that case, first company issues some securities into the public like the shares. Okay, so when company issue the shares into the market, and when investors purchase the shares of the company, so they become the shareholder of the company. So they will get the shareholder, they will get dividend as income on their investment. So when shareholder or when the investors invest their fund into the shares of the company, जब वो कंपनी की शेयर्स पे अपने पैसे एक्सपेंस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो दे विल गेट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. मतलब वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक तरह का इनकम अर्न करते हैं, दैट इज़ नोन एज द डिविडेंड. ओके, मीन्स दिस इज़ द रिटर्न ऑन देयर शेयर्स. वो क्या होता है, उनके शेयर्स का रिटर्न होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट. मतलब उनकी जो डिविडेंड का रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, फिक्स नहीं होता है. बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट. ओके, मीन्स यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है, सो दे विल गेट on the fluctuating rate. Okay, so rate of dividend is fluctuating in case of equity shares but fixed in case of the preference shares. Okay, now अभी हम ये भी बता दें कि जो डिविडेंड होता है ये क्या होता है. दिस इज द यूनिट और वी कैन से दैट इट अ पोर्शन of the profit of the company. Dividend is the portion of the profit of the company which is distributed to the shareholder of the company. And company two types के dividend इशू करती है, लाइक फाइनल डिविडेंड देती है, डिक्लेयर कर सकती है, या फिर इंटरिम डिविडेंड भी कर सकती है. फाइनल डिविडेंड मीन्स जो कंपनी ईयर के एंड में करती है, एंड इंटरिम डिविडेंड मीन्स जो कंपनी ड्यूरिंग द ईयर करती है. ओके, मतलब साल के बीच में ही जब कंपनी ऐसा डिक्लेयर कर दे डिविडेंड, दैट इज नोन एज द इंटरिम डिविडेंड. एंड द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर at the end of the year, it is known as the final dividend. So I hope so guys ki you can very well understand what is the dividend. Now let's come to the interest. What is the interest? Students, after collecting the funds from the public, if company are not satisfied with the fund and company think that there is a need of the or extra additional fund, उनको और extra additional fund की ज़रूरत रहेगी. So in that case company क्या करती है, company issues some debentures into the public, and when the investors invest their fund on their debentures or their bonds, so the company have to give रिटर्न ऑन देयर डेवेंचर्स. उनके डेवेंचर्स के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, कंपनी हैव टू गिव रिटर्न ऑन डेवेंचर. इट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. ओके, मीन्स व्हेन द डेब्ट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे जो डेब्ट कैपिटल होल्डर रहेंगे, लाइक द बॉन्ड होल्डर और डेवेंचर्स होल्डर, सब दे विल गेट द इंटरेस्ट ऑन देयर बॉन्ड्स, ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ऑन देयर डेवेंचर्स. अपने डेवेंचर्स पे, अपने बॉन्ड्स पे जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जब उनको कुछ इनकम मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दैट इज नोन एज द interest. Okay, so return on debentures, return on bond, it is known as the
interest. Return on debentures or bond is called interest and it is fixed. वो क्या होता है? The rate of interest will be fixed at the time of the issue. Okay, but interest is paid even when company has no profit. Means the interest have to paid by the company whether it is profit or not. कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं, फिर भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. ओके, सो हियर द इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स रेट टू द बॉन्ड और डेप्ट होल्डर. ओके, जो भी डिवेंचर होल्डर है उनको पे करना ही पड़ेगा, जबकि डिविडेंड में ऐसा नहीं है. नाउ अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट की. ठीक है, मैंने हमको बता दिया कि इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट फिक्स होता है. इंटरेस्ट टू टाइप्स के, इंटरेस्ट रिसीव करने वाले टू टाइप्स के होते हैं. इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलेंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको फिक्स रेट में मिलेगा. ओके, डिविडेंड. बट जो इंटरेस्ट रिसीवर हैं, वो बॉन्ड होल्डर होने दो या फिर डिवेंचर होल्डर होने दो, दे विल गेट द इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट. ओके, सो जो डिवेंचर्स कैपिटल होता है, जो लोन होता है, एक तरह का लोन होता है, बोरोड कैपिटल होता है वो. सो यहाँ पे वो कंपनी क्रिएटर होते हैं. सो दैट्स वाई दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स. ओके, सो इंटरेस्ट एक तरह का क्या हो गया? डेप्ट हो गया. ओके, और वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं होता है. द कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट इन अ कंपनी. ओके, सो ये था हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. ओके, देयर आफ्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन योर बुक इंट्रोडक्शन. ओके, फर्स्ट स्टूडेंट्स वी विल वेरी नो कि एवरी कंपनी हैव टू अर्न द प्रॉफिट. सारी कंपनी को क्या, उनका फर्स्ट एम क्या होता है? टू मेक द प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट फ्रॉम द, जो भी प्रॉफिट आया है उसी प्रॉफिट को, उससे उसका मेन एम क्या होता है? उसी प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना. ओके, सो द प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम एम और प्राइम गोल ऑफ ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो एवरी शेयर होल्डर इन्वेस्ट with an aim of earning return out of the profit of the company. Means हर जो शेयर होल्डर होता है उनका फर्स्ट एम क्या होता है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट हो उसमें से उनको रिटर्न अर्न करना. मीन्स they are investing their fund into the company with the only aim of earning more and more profit or return out of the company's profit. कंपनी के प्रॉफिट में से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न और प्रॉफिट कमाना, ये पहला एम होता है किसका? शेयर होल्डर्स का. ओके, ना अभी प्रॉफिट होता क्या? जस्ट प्रॉफिट तो यही होता है. हमने अपने क्लास जो हम स्कूल में पढ़ते तो अभी हमने ये पढ़ा था प्रॉफिट मीन्स व्हाट. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्कूल में कि जो भी कंपनी का जो भी सेलिंग प्राइस होता था, सेलिंग प्राइस माइनस सॉरी अरे हमने पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, यही पढ़ा था हमने. बट हम जो कॉमर्शियल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंस. मीन्स यहाँ पे जो हमारा रिवेन्यू है, जो हमारी इनकम है, उसमें से जब एक्सपेंस हमारा सब माइनस होने के बाद जो भी रिटर्न बचेगा दैट इज नोन एज द प्रॉफिट. सो हियर द प्रॉफिट is the difference between the revenue and the expense for a given period. means revenue minus expense equal to profit. जो भी हमारा revenue आता है, जो भी हमारा income है, उसमें से सारे expense को minus करने के बाद what is left, that is our profit. Okay, now they has given the meaning of dividend. Now let's see what has given in 10.1 dividend meaning. The term dividends is derived from the Latin word dividendum, which means that which is to be divided. Yes, अभी हमने भी ऐसे देखा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. सो द डिविडेंड इज ऑल्सो कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द डिविडेंडम, विच मीन्स दैट मस्ट बी डिवाइडेड. मीन्स विच इज टू बी डिवाइडेड, जिसका जो डिवाइड हुआ हो, जो विच क्या होगा, विच मतलब जो विच मस्ट बी डिवाइडेड.
डिवाइडेड, जिसका डिवाइड होना जरूरी हो. ओके, सो दैट इज नोन एज द डिविडेंडम. ये डिविडेंडम एक लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग किया गया है, लैटिन वर्ड से आया है, डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, विच मस्ट बी divided. Now it is that a part of the profit of the company. Yes, definitely this is the portion of the profit of the company. This is a one kind of unit shares or the portion of the profit of the company which is distributed among the shareholder. जो शेयर होल्डर के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. मीन्स प्रॉफिट का एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट इज नोन एज द डिविडेंड. एंड द डिविडेंड इज अ यूनिट इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिविडेंड इज अ शेयर मीन्स इट इज अ पार्ट और इट इज अ यूनिट इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. जो कंपनी का प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, कहाँ पर, टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल, जिसके लिए शेयर होल्डर एंटाइटल होंगे. मीन्स द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, लेकिन जिसके लिए शेयर होल्डर विच इज़ एंटाइटल बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के थ्रू एंटाइटल है, मतलब जिसके ऊपर शेयर होल्डर का अधिकार है, वो भी कब, जब कंपनी उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर देगी. मीन्स द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो और उस पे शेयर होल्डर का अधिकार हो, दैट इज नोन एज द डिविडेंड. ओके, सो डिविडेंड इज अ part, unit, a portion of the distributable profit of the company which is declared by the company and which is entitled by the shareholder. Okay, now there has a definition of the dividend is also given. According to the Institute of the Chartered Accountant of India has defined dividend as a distribution to shareholders out of the profit or reserve available for this purpose. मीन्स उन्होंने क्या बताया है कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है जो शेयर होल्डर के बीच में किया जाता है, किसमें से, आउट ऑफ द प्रॉफिट और द रिजर्व अवेलेबल फॉर द पर्पस. मीन्स डिविडेंड के पर्पस से, डिविडेंड के पर्पस से शेयर होल्डर के बीच में कंपनी के प्रॉफिट में से या फिर कंपनी का जो रिजर्व रखा हुआ उसमें से जब कंपनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उस प्रॉफिट में, इसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, दैट इज नोन एज द डिविडेंड. ओके, मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना आउट ऑफ द प्रॉफिट, किसमें से, कंपनी के प्रॉफिट में से या फिर रिजर्व में से, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर में जो कंपनी ने किस पर्पस के लिए रखा हो, डिविडेंड के पर्पस के लिए रखा हो. Okay, now the second definition has given according to Supreme Court has defined it as in case of going concern. Now what is the meaning of going concern? Going concern means which a business, going concern means a business which is operating and making a profit. वो business जो फंड को ऑपरेट करती हो या फिर प्रॉफिट बनाती हो, विच इज़ मेकिंग, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस बिजनेस का, वो बिजनेस जो प्रॉफिट बनाती हो, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, इट मीन्स पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर ऑफ शेयर इन अ कंपनी. मीन्स इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न मीन्स in case of a business that is operating and making profit, it means portion of a प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को अलॉट किया जाता हो, दैट इज नोन एज द डिविडेंड. Okay, now you can see in a blue box has given the going concern means a business which is operating and making a profit. So that has given above only in case of going concern. आप second definition में देखोगे तो लिखा in case of going concern. Now going concern का meaning दिया हुआ है आपको नीचे blue box में. Going concern means a business that is operating and making a profit. It means पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, मीन्स कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, वो शेयर, वो यूनिट, वो पोर्शन जो
कंपनी के शेयर होल्डर्स को अलॉट किया जाता हो. ओके, तो that has only written. Now B what written? The profit available for distribution and profit available for dividend are the different term. यहाँ पे क्या बोलता है, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है ये अलग है, और जो डिविडेंड के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है वो अलग है. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रॉफिट है वो अलग चीज़ हो गया, और डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो अलग. दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि दोनों अलग अलग टर्म है. ना फॉर्मल मीन्स क्या होता है? फॉर्मल मीन्स द मैक्सिमम प्रॉफिट विच लॉ अलाउज अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड. फॉर्मल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जब लॉ अलाउ कर देती है कंपनी को, मतलब जो कोर्ट या फिर लॉ प्रोविज़न ऐसा अलाउ कर देता है कंपनी को कि आप अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड पे कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है फॉर्मल. Now latter means profit which the directors considers should be distributed after making provision for transfer to reserve past losses etc. Latter means कि प्रॉफिट जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट तब कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्टर आफ्टर डिडक्टिंग दी पास्ट लॉसेस. जो भी प्रीवियस लॉसेस हुए हैं उसको फुलफिल करने के बाद, फिर जो भी उनको रिजर्व रखना है अपना नेक्स्ट फ्यूचर्स के लिए, वो सारे प्रोविज़न करने के बाद, लॉसेस को डिडक्ट करने के बाद, सारे प्रोविज़न्स क्लियर करने के बाद जो भी फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको हम अब एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो ये था हमारा मीनिंग इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द फीचर्स ऑफ डिविडेंड. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.